نہ میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں ایک اچھا مسلمان بنوں. قرآن شریف جب میں پڑھ رہا تھا تو میں ایک ہی بات ڈھونڈ رہا تھا کہ کہیں قرآن شریف میں اور انسانیت میں کوئی کانٹرڈکشن ہے. تو مجھے کہیں بھی نہیں ملا کہ انسانیت تو یہ کہتی ہے اور قرآن یہ کہتا ہے. نہیں, جو انسانیت کہتی ہے وہی قرآن میں ہے, وہی ہے قرآن. تو کیا جہالت ہے کمیونٹی؟ جہالت. اور My mother is Hindu, my father is Muslim. Okay, میں اپنے آپ کو انسان بلاتا ہوں, human being. تو انسانیت اینڈ نتھنگ بٹ انسانیت, دیٹ از مانو دھرم. یہ ایک نیا زمانے کی نئی تقاضا ہے. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمارے ہندو بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ عیسائیت میں, اسلام میں, ہندو دھرم میں کافی یکسانیت ہے, پھر بھی سنگرش ہے, ہمیشہ لڑنا جھگڑنا. ہم صرف ماننا چاہیے انسانیت, ہم ماننا چاہیے ہیومینٹی. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ کتاب انسانیت کس نے لکھی؟ کیا پاتے کوئی کتاب جس کا نام انسانیت ہے؟ اسلام میں ایک مسلمان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا تب تک جب تک وہ اچھا انسان نہیں. اگر مسلم اچھا انسان نہیں تو مسلم ہو ہی نہیں سکتا. اچھا انسان ہونا بہت ضروری ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اسکول 10th اسٹینڈرڈ پاس کرو, میں کہہ رہا ہوں گریجویشن کرو. تو انسانیت از 10th اسٹینڈرڈ, اسلام از گریجویشن, پوسٹ گریجویشن ایک دم. اس کتاب قرآن میں آپ ایک بھی آیت نہیں دکھا سکتے جو انسانیت کے خلاف ہے. میں جانتا ہوں کئی دشمن اسلام, کرٹکس آف اسلام نے کتابیں لکھی اسلام کے خلاف, کیونکہ انہیں اسلام کا علم نہیں ہے. قرآن مجید کی ایک بھی آیت آپ مجھے دکھا نہیں سکتے جو انسانیت کے خلاف ہے. وہ انسانیت کے بارے میں ہی کہہ رہا ہے. آپ اگر جائیں گے کوئی جنگل میں اور آپ پھل کھانا چاہتے, آپ کو پتہ نہیں کون سا پھل زہریلا ہے کیا نہیں, تو آپ پوچھیں گے نا کس سے تو پوچھیں گے بھائی کون سا زہریلا ہے کیا نہیں. آپ خود اگر کوشش کریں گے تو بہت جلدی آپ غلط پھل کھا کے مر جائیں گے. آپ جب بیمار ہوتے جاتے ڈاکٹر کے پاس, صحیح. تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی خدا نے انسانوں کو بنایا ہے. خدا سے بہتر کون جانتا ہے زندگی کس طریقے سے جینا چاہیے؟ خدا دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر, سارے ڈاکٹر کو اکٹھا کریں گے, اس سے بڑا ڈاکٹر ہے ہمارے بنانے والا. تو ہمیں یہ تحقیق کرنا چاہیے کہ ہمارے بنانے والا, ہمارا خالق, ہمارا خدا کس طریقے سے زندگی ہمیں چاہتا ہے کہ گزارے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کم از کم یہ مانیے کہ ایک کتاب, کم سے کم ایک کتاب خدا کی طرف سے 100% صحیح ہے. ہندو کہیں گا میری ویدا خدا کی کتاب ہے, عیسائی کہیں گا بائبل, مسلم کہیں گے قرآن. پھر میں کہتا ہوں جو چیز ان تینوں کتابوں میں یکساں ہے کم سے کم اس پہ تو عمل کرو. جو اختلاف ہے, اختلاف ہوتے ہیں, میں نہیں کہتا ہوں کہ ساری چیزیں یکساں ہے, اختلاف چیزوں کو بازو رکھو. کم سے کم جو یکساں ہے اس کے اوپر تو عمل کرو. جتنے اہم مذاہب دنیا میں سب میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے, بت پرستی حرام ہے, پیغمبر آنے والے ہیں, آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ دنیا ایک امتحان ہے آخرت کے لیے. کم سے کم اس کے اوپر تو عمل کرو. کم سے کم ہم آج وعدہ کریں کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے, ایک خدا کی, بت پرستی نہ کرے, آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانے. سینکڑوں حوالے ہیں ویدا میں جس میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں, بائبل میں بھی لکھا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کم از کم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانو, اختلاف چیزوں کو بازو رکھو. اس طریقے سے کم جو ہمارا بنانے والا, ہمارا خدا ہم سے چاہتا ہے, یہی صحیح انسانیت ہے. میں نے تذکرہ کیا تھا, ویدا میں لکھا ہے, بائبل میں لکھا ہے, قرآن میں لکھا ہے شراب مت پیو. شراب مت پیو کیوں؟ ابھی ڈاکٹر کیا کہتا ہے, چھوڑو, ہمارا بنانے والا جانتا ہے شراب پی جائیں گے تو آپ بھیگ جائیں گے, غلط کام کریں گے, آپ کو اتنے بیماریاں ہوئیں گے, سیروسس آف لیور, کینسر آف دا اسوفیگس, کینسر آف دا لیور, ڈیمیج آف دا برین, سینکڑوں بیماری ہوتے. تو جب ہمارے بنانے والا کہہ رہا ہے وید کے اندر, بائبل میں, قرآن میں, شراب چھوڑ دو, شراب چھوڑ دو, جھگڑا کیا اس میں؟ تو بھی لوگ شراب پیتے.
तो मैं ये कहता हूं जो यकसा है, सबसे अहम यकसानियत खुदा एक है, बुत परस्ती मत करो, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मानो और उसका कहना मानो। इतना अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह इस दुनिया से नफरत हट जाएंगी और सिर्फ अमन रहेगा। अगला सवाल इस तरफ से करें, माइक नंबर 2 से। सलाम वालेकुम। मैं सांगली से मंदार काटकर, मेरा व्यापार है बैग बनाने का। जब मराठी बोलते हो जो चलता है तो बोलिए बोलिए, मराठी में बोलिए। हां, पैगंबर ज्यावेळी कुराण एवढं व्यवस्थित आहे सगळं, मग ज्यावेळी मोहम्मद पैगंबर आले त्यावेळीच कुराणाचं हे उघड झालं, ह्याच्यावर काय लावून दिलं नाही? मैं मराठी समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं रीचेक किया हूँ कि सही समझ रहा हूँ कि नहीं। मैं अंग्रेजी में महारत रखता हूँ, उर्दू थोड़ी बहुत जानता हूँ, मराठी समझता हूँ, क्योंकि जब मैं मेडिकल डॉक्टरी करता था तो मराठी में पेशेंट आते थे जो जितने लफ्ज मराठी के तुम्हाला काय त्रास ताप येते क्या, ये तो अच्छी तरह से जानता हूँ। बाकी चीज जरा, भाई साहब का सवाल था कि कुरान मजीद नाजिल हुआ जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उसके पहले क्यों नहीं आया? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अहम सवाल। मेरा बेटा मुझसे पूछता है, कहता है अब्बा पिता मुझे डॉक्टर बनने का है, आप स्कूल में क्यों डाल रहे, डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में डालिए। भाई पहले तो आप स्कूल में जाइए, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, फिर कॉलेज, फिर मेडिकल कॉलेज। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हाना व तआला खुदा जानता है कि इंसान कब समझ सकेगा, तो सबसे पहले उनने वो वही नाजिल की जो इंसान समझ सकता है। फिर इंसान की जब तरक्की होने लगी, अल्लाह सुब्हाना व तआला खुदा जानता है कि 1400 साल पहले अभी इंसान ये कुरान को समझ सकेगा, और इसका जिक्र बाइबल में भी है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 और 14 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, आई हैव मेनी थिंग्स टू से टू यू बट ही कैन नॉट बेयर देम नाउ। मुझे बहुत कुछ आपको कहने का है लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। फॉर ही व्हेन द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ शैल कम ही शैल गाइड यू इनटू ऑल ट्रूथ। जब वो आएगा रूह हक, वो आपको सच्चाई दिखाएगा। बाइबल में इसका जवाब है, क्योंकि उस वक्त 1400 साल के पहले इंसानियत इस कुरान को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाती थी। इसीलिए जो अहम है, फंडामेंटल्स है, बुनियादी जो मैसेज है, पैगाम है, वो सारी किताबों में बुनियादी मैसेज क्या है? खुदा एक है, बुत परस्ती मत करो। उसके पहले शराब हराम कहां था कहां नहीं था वो इतना अहम नहीं है। अहम है अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, खुदा की इबादत करो। उसके बाद एक पैगंबर आने वाला है। बाकी किताबों में, वेद के अंदर, उपनिषद में, बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर, सारे किताबों में जो अहम मज़ाहिब के हैं उसमें लिखा हुआ है खुदा एक है, बुत परस्ती मत करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाला है। तो अल्लाह ताला जानता है इंसान के बारे में। जिस तरीके से मेरा बेटा जो 11 साल का है अभी मेडिकल कॉलेज नहीं जा सकता है, पहले फर्स्ट करो, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड जाओ, 11, 12, फिर मेडिकल कॉलेज। तो इसी तरीके से अल्लाह जो हमारा बनाने वाला, जो हमारा खालिक है, वो जानता है कब किस चीज इंसान समझ सकता है। तो 1400 साल पहले अल्लाह हमारा खुदा जान गया अभी सही मौका है। आखिरी कलाम कुरान भेजा, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद कोई भी कलाम नहीं आएगा अल्लाह की तरफ से, कोई भी वही नहीं, कोई भी पैगंबर नहीं। अगर कोई कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कि वो पैगंबर है, उसको साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का। और ये सिर्फ कुरान में नहीं लिखा है, आपकी किताब में लिखा है, कल के अवतार अंतिम ऋषि है, बाइबल में लिखा है, बुद्धिस्ट किताबों में लिखा है। तो इसीलिए जब वक्त सही था, अल्लाह ने सही किताब नाजिल की और आखिरी पैगंबर को भेजा। मेरा नाम रमेश कामले है, आई एम अ लेक्चरर इन इंग्लिश। संत कबीरदास जी ने कहा है एक जगह पे, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात, गधे से गधा मिले तो होएला था लात। अभी दो ज्ञानी क्या बात करेंगे, पहली तो बात यह है। लेकिन मेरे जैसा अज्ञानी थोड़ा सा आपसे कुछ जानना चाहता है। पहली बात तो यह है, मैं पहले कुछ 4-6 महीने पहले एक पुस्तक पढ़ी है जिसका टाइटल है मराठी में
जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूं, सूफीवाद का अंतरंग, जिसके लेखक है डॉक्टर अलीम वकील, जो कि कुछ लेक्चरर हैं इन पॉलिटिकल साइंस संगमनेर कॉलेज, और उन्होंने उस बुक में क्लियरली ये माना है कि सूफीवाद और मुस्लिम, इस पर बुद्ध धर्म का बहुत प्रभाव है, बुद्ध के विचारों का बहुत प्रभाव है. सो आई जस्ट वांट टू नो and your argument in that favor. So, is it true or false? भाई साहब ने पूछा है कि एक शख्स ने किताब लिखी है और कहा है कि सूफी धर्म, इस्लाम धर्म, बुद्ध धर्म का बहुत प्रभाव है. इज इट राइट? ये सही है क्या? पहला चीज, इस्लाम को जानने के लिए आपको तहकीक करना चाहिए. इस्लाम की किताब के बारे में सबसे अव्वल किताब है कुरान. जो मैं कहता हूं इस्लाम में, वो कोई मानी रखता ही नहीं. डॉक्टर जाकिर नाइक की जीरो इन इस्लाम. इसीलिए मैं तकरीर में कहता हूं कि मैंने कह रहा हूं कुरान में लिखा है चैप्टर 5 वर्स नंबर 90 में शराब पीना हराम है. जो आप शख्स का जिक्र कर रहे हैं, मैं उनके बारे में कभी पहले सुना नहीं. आपको इस्लाम को जानने का है, कुरान पढ़ो और सही हदीस जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र करती है. कुरान और सही हदीस सिर्फ. इसके बाद जो भी इंसान कुछ भी बात करता है, अगर कुरान के हवाले और सही हदीस के हवाले से करता है तो उसकी बात मानो, अगर नहीं करता है उसको फेंक दो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेक्चरर हो. इसीलिए डॉक्टर जाकिर नाइक, मैं खुद शून्य हूं, जीरो. इसीलिए तकरीर में जब मैं इस्लाम की बात करता हूं तो कुरान का हवाला देता हूं, सही हदीस का देता हूं. हिंदुइज्म की बात करता हूं, वेद का हवाला देता हूं, उपनिषद का देता हूं. क्रिश्चियनिटी क्या करता हूं, बाइबल का देता हूं. जो आप जिक्र कर रहे, जो किताब का मैं कभी पहले सुना नहीं हूं, लेकिन इस बात को मैं मानता हूं. ये कहता हूं कि बुद्ध धर्म और इस्लाम में यकसानियत है. लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, इस्लाम मजहब नया मजहब नहीं है, बुद्ध धर्म से पहले आ चुका है. और तकरीर के पहले मैंने कहा हूं, लोग को गलत फहमी है कि इस्लाम 1400 साल पहले वजूद में आया. नहीं, वो बहुत पहले से. इंसान जमीन पे कदम रखने से पहले आदम अलैहिस्सलाम ने पैगाम दे इस्लाम का, नूह अलैहिस्सलाम ने दिए इस्लाम का, मूसा अलैहिस्सलाम ने दिए इस्लाम का, ईसा अलैहिस्सलाम ने इस्लाम का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का. तो लोग को गलत फहमी है कि इस्लाम 1400 साल पहले आए. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानी नहीं है, आखिरी पैगंबर है. तो इस्लाम बहुत पहले से है, बुद्ध धर्म से पहले. कुछ लोग कहते हैं कि क्या बुद्धा अल्लाह के पैगंबर है, उनका नाम से जिक्र कुरान में नहीं है. तो मैं नहीं कह सकता हूं है क्या, नहीं हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, मैं नहीं जानता हूं. लेकिन अगर है भी तो उस वक्त के लिए थे, उन लोगों के लिए. कुछ बातें यकसा होंगी, कुछ बातें, और मैंने उसके पर तकरीर की है. उसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम उससे प्रभावित है. तो मैं ये कहता हूं कि अगर मानवी लोग के गौतम बुद्ध खुदा के पैगंबर थे, वो उस वक्त के लिए थे, उन लोगों के लिए थे, आज के लिए नहीं. आज हमें मानना चाहिए आखिरी कलाम कुरान और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सारे इंसानियत के लिए, चाहे आप हिंदुस्तान में रह रहे, अमेरिका में या इंग्लैंड में.